Hello student, today we are going to study the combination of the capacitor. Combination of the capacitor. There are many combinations of the capacitor, but in your standard you will study only two types of the combination. First, series combination and another is पैरेलल कॉम्बिनेशन. से फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. in series combination there are 3, 2 or more than 3 capacitors are connected such a way that here 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are connected in series. First plate of the first capacitor connected with the source, and second plate of the first capacitor connected with the first plate of the second capacitor, and second plate of the second capacitor is connected with the first plate of the third capacitor, and second plate of the third capacitor will be connected with the bus. Suppose by external source, or you may say that by charging device, if you give a charge to capacitor first plate of the capacitor C1 plus Q, then by induction first second plate of the first capacitor be negatively charged. And its positive charge moves towards the second plate, first plate of the second capacitor, and the equal amount of plus charge will be first plate on the second capacitor, and by induction second plate of the second capacitor will be negatively charged, and by this way it's being positive charge and it's being negative charge. And positive charge when the second plate of the third capacitor connected with the electron moves from the earth and neutral replies to the positive charge. So this by charging, suppose by charging potential developed across the capacitor V1 is first C1 is V1 and along C2 is V2 and along C3 is V3. Then, if the total potential difference across in suppose its points A and its point B, between A and B is V. So we know that potential charge we know that amount of charge
stored on capacitor Q is equal to C into P, where C is the capacitance of the capacitor and V is the potential across the capacitor. Then amount of charge Q for C1. Q is equal to C1 V1. For C2, Q is equal to C2 V2, and for C3, Q is equal to C3 V3. अब यहाँ पे तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा उसका अमाउंट जो होगा क्या होगा, सेम होगा. चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जितना भी चार्ज हमने फर्स्ट प्लेट को दिया है ठीक उसी अमाउंट में, लेकिन इक्वल अपोजिट चार्ज जो होगा बाय इंडक्शन क्या होगा, सेकेंड प्लेट पे होगा. और फिर यहाँ से पार्शियल चार्ज मूव कर गए फर्स्ट प्लेट पे सेकेंड कैपेसिटर के, तो उतना ही जितना यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे पार्शियल चार्ज होगा, फिर उतना ही यहाँ निगेटिव, उतना यहाँ पार्शियल, उतना यहाँ निगेटिव चार्ज होगा. दैट मींस चार्ज जो तीनों कैपेसिटर पे होगा वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, जो कि क्यू की इक्विवेलेंट है. तो टोटल पोटेंशियल across the combination V is equal to V1 plus V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3. In place of V1, V is equal to Q divided by C. So V is equal to, in place of V1 we can write Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. If C is the capacitance of the combined capacitor, then in place of V हम लिख सकते हैं Q upon C. So Q upon C is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Q divided by C is equal to Q हम काम ले लें सबसे, यहाँ पर हो जाएगा 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Q से Q cancel, that is 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ये जो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन के, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके लिए रिजल्टिंग कैपेसिटेंस का फार्मूला है. दैट मीन्स इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं in series combination reciprocal of total combination of capacitors is equal to the sum of the reciprocal of individual
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट होगा उसका रेसिप्रोकल जो होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ये आपका फॉर्मूला रहा टोटल कॉम्बिनेशन वे 3 or more than 3 capacitors are connected in the series. After this आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज कीजिए ये 3 कैपेसिटर्स हैं जिनके कैपेसिटेंस जो हैं C1, C2, C3 है। इनकी फर्स्ट प्लेट जो है एक पॉइंट ए पे कनेक्टेड है जिसको कि सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया और सेकेंड प्लेट जो है पॉइंट बी पे कनेक्ट है जिसको कि अर्थ से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। अगर हम और इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल क्या है, V। अगर हम सपोज कीजिए Q चार्ज एक्सटर्नल सोर्स से अगर Q चार्ज हम क्या करते हैं, इस पे कैपेसिटेंस को चार्ज करते हैं तो ड्यू टू कैपेसिटेंस दैट मींस इस चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इस पे जो चार्ज होगा प्लस Q होगा, इस पे जो चार्ज होगा माइनस Q होगा। वो भी जो इसकी चार्ज होगी C1 है, सपोज कर लेते हैं इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो Q1 है और इस पे प्लस Q2 यहाँ पे माइनस Q2 प्लस Q3 और यहाँ पे माइनस Q3 होगा। सेम अमाउंट में जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा इंडक्शन के ड्यू टू यहाँ पे उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। वही अब ये टोटल चार्ज जो होगा Q1, Q2, Q3 के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस Q1 टू टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटेंस अगर ऐड करेंगे तो जितना चार्ज इसको दिया गया उसके चार्ज के सम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे तीनों कैपेसिटर्स जो हैं पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अगर वह क्या है, V के इक्विवेलेंट है तो हम हमें जानते हैं कि Q इज इक्वल टू we know that what Q is equal to C into V, Q is equal to C into V, तो Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V. Then total charge given to combination Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। जो टोटल चार्ज होगा वही चार्ज होगा तीनों कैपेसिटर पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q1 C1 प्लस चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3, इसके इक्विवेलेंट होगा। तब यहां से Q इज इक्वल टू CV यहां पे मेंशन किया गया है तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ C1V प्लस C2V प्लस C3V हो गया। इफ the equivalent capacitance
of the capacitor is C, then Q is equal to C into V होगा। तो Q in place of Q आप लिख सकते हैं C into V is equal to C1V plus C2V plus C3V। CV अब यहाँ से V आप कॉमन ले लोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, V से V कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू हो गई C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो हुआ फॉर्मूला आया। दैट मीन्स इसके लिए स्टेटमेंट है in parallel combination total capacitance of capacitor is equal to the sum of the capacitor of individual capacitor। That means जो टोटल कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस जो होगा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का वह क्या होगा, इंडिविजुअल जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगा। ये रहा आपका फॉर्मूला इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन द चार्ज कैपेसिटर। energy stored in charged capacitor। एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। इसके लिए आप सपोज कीजिए कोई भी कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर है, उसको जो एनर्जी दी जा रही है मैक्सिमम चार्ज जो दिया जा रहा है वो मैक्सिमम गिवन चार्ज जो उसको है वह क्या है, Q है। मैक्सिमम जो गिवन चार्ज है उसको क्या है, Q है। अब अगर उसको हम चार्ज करते हैं कब से, जब वो अनचार्ज है, उससे लेकर के टोटल चार्ज तक Q से लेकर 0 से लेकर के Q तक। तो सपोज कर लीजिए जब चार्जिंग स्टार्ट हुई ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर initially if amount of the charge stored by capacitor is Q, जो टोटल चार्ज दिया जा रहा है उसको वो क्या है, Q है। तो उस कंडीशन में अगर let the amount of charge on the capacitor in starting or initial is Q dash, when delta Q dash charge is given to
capacitor, then the charge capacitor is equal to Q dash प्लस डेल्टा Q डैश। उसको डेल्टा Q डैश चार्ज दिया गया तो उस कंडीशन में जो टोटल चार्ज उस पे होगा वह क्या होगा, Q डैश प्लस Q होगा। तो उस कंडीशन में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V डैश, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कंडक्टर V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C के इक्वल होगा। अब उसके बाद तो वर्क डन टू गिव द चार्ज ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटर, तो वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम Q डैश टू Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश, ये होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V डैश इंटू डी Q डैश। ये वैल्यू जो होगी Q डैश की इक्वल होगी, इन प्लेस ऑफ V डैश हम लिख सकते हैं Q डैश अपॉन C इंटू डी Q डैश। तो टोटल एनर्जी टोटल वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर from Q is equal to 0 to Q dash is equal to 0 to Q। दैट मीन जब अनचार्ज कंडीशन में है वहां से लेकर के Q तक दिया जाएगा तो उस कंडीशन में W is equal to हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to Q dash अपॉन C D Q dash। 1 बाई सी आप कॉमन ले लोगे, ये वैल्यू हो जाएगी Q डैश डी Q डैश फ्रॉम 0 टू Q। अब इस वैल्यू को जब डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी Q डैश स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू Q। इसको आप मेंशन कर सकते हो 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 टू द पावर 2 बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। ये जो हुआ टोटल वर्क डन होगा। तो जो ये टोटल वर्क डन होगा वही वर्क डन जो होगा उसमें स्टोर्ड जो एनर्जी होगी उसके इक्विवेलेंट होगा। इसको ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, C भी होता है, तो W इक्वल टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, दैट मीन्स W इक्वल टू 1 बाई 2 C V स्क्वायर। अब यही टोटल वर्क डन जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वह किसके इक्विवेलेंट होगी, हाफ C V स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगी। U इक्वल टू वर्क डन जो होगा उसमें स्टोर चार्ज एनर्जी के इक्वल हो जाएगा 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C R U इज इक्वल टू 1 बाई 2 C V स्क्वायर। इन केस ऑफ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर
या कैपेसिटर। U इक्वल टू होगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, where C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A and A is radius of sphere। यह अब यहाँ पे ये एनर्जी स्टोर्ड इन दी चार्ज कैपेसिटर, चार्ज एनर्जी या वर्क डन टू चार्जिंग दी कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूले को अगर हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लेते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लेते हैं, तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन U इक्वल हाफ C V स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ C सी V की जगह पे लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई C का स्क्वायर, दैट इज 1/2 C Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, इट्स बीइंग 1/2 Q स्क्वायर इंटू 1/C। अब देखिए U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर, 1/C के प्लेस पे आप ले सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट मीन्स अगर मल्टीप्लाई करोगे आप ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C2 प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C3। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो, ये U1 प्लस U2 प्लस U3, ये टोटल एनर्जी दैट मीन्स जो इंडिविजुअल चार्ज को जो स्टोर एनर्जी होगी या उनको चार्ज करने में जो वर्क डन होगा उसके इंडिविजुअल वर्क डन के सम के इक्वल होगा। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ पैरेलल combination U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/2 इन प्लेस ऑफ C आप मेंशन कर सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V स्क्वायर। ये हो सकता है 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर प्लस 1/2 C3V स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो होगा टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी या चार्ज स्टोर एनर्जी जो होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटर को जो चार्ज करने में एनर्जी या वर्क डन होगा उसके सम के की वैल्यू होगी। इसके बाद है एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर हम जानते हैं U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर, 1/2 हाफ 1/2 C V स्क्वायर। कैपेसिटर के लिए C के लिए वी नो दैट क्या C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एंड V इक्वल टू E इंटू D, V इक्वल टू E इंटू D। इन प्लेस ऑफ U 1/2, in place of C
हम मेंशन कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, और इन प्लेस ऑफ डी हम मेंशन कर सकते हैं ई इंटू डी की स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। दैट मीन्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी होगा। यहाँ पे हियर ए is a area of plate and D is distance between them. So A into D, B volume of space between plates। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होगा एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। दैट मीन्स इसको अगर एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी यू अपान वी, या इसकी जगह पे मेंशन कर सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी डिवाइडेड बाय, इन प्लेस ऑफ वी हम मेंशन कर सकते हैं ए इंटू डी। वी इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो ए इंटू डी से ए इंटू डी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स एनर्जी डेंसिटी जो होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इसकी वैल्यू। अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी लेते हैं और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट होगा एक पैराबोला रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।